حالات جس نہج پر پہنچ چکے، پی ٹی آئی کی ساری سیاسی قیادت مکمل خاموش ہو جائے تو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دنیا کی سب سے مہنگی بجلی، دنیا کی سب سے مہنگی گیس، دنیا کا سب سے مہنگا تیل، بدنام زمانہ مجرموں کا ٹولہ اور مجرموں کی حکومت اور بدترین گورننس، بے انتہا کرپشن، دہشت گردی، بدامنی، ظالمانہ ٹیکسز، اب سپر ٹیکس، عوام دشمن قوانین کا نفاذ، اظہار رائے پر غیر منطقی پابندیاں، ذہانت کا روز بروز بڑھتا انخلاء جو ذہانت ملک چھوڑ رہی ہے، نوجوانوں کی مایوسی اور تباہ حال معیشت و تباہ حال زراعت، یہ ایسی ٹھوس وجوہات ہیں کہ جن کا ذمہ دار عوام صرف اور صرف جرنیلوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کیا دھرا جرنیلوں کا ہے، کیونکہ عوام نے جو ہے وہ بڑا خوبصورت اور نپت اللہ فیصلہ دیا تھا 8 فروری 2024 کو، اور عوام جو ہے جس طرح کہتے ہیں کہ وہ آواز خلق نکارہ خدا ہے، عوام نے مل جل کر فیصلہ کیا۔ 3 کروڑ لوگوں نے ووٹ ڈال دیا ایک بے نامی پارٹی کو، ایک جو ہے بے نشان پارٹی کو۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ لوگوں کے پاس آپشن تھا، آپشن بہت آسان تھا، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کیسے؟ نون لیگ کا شیر موجود تھا، پیپلز پارٹی کا تیر موجود تھا، ہر کوئی جانتا ہے، جماعت اسلامی کا ترازو موجود تھا، فضل الرحمان کی کتاب موجود تھی، ٹی ایل پی کی کرین موجود تھی، ایم کیو ایم کی پتنگ موجود تھی۔ اب یہ جو نشانات ہوتے ہیں نا، یہ کیوں دیے جاتے ہیں پوری دنیا میں؟ اب امریکہ میں ڈیموکریٹس کا جو نشان ہے وہ گدھا ہے، اور ریپبلکن کا ہاتھی ہے، پوری دنیا جانتی ہے، ان کا ووٹر جانتا ہے۔ اور پھر پاکستان جیسے معاشرے میں جہاں بزرگ ہیں، جہاں 50% لوگ ناخواندہ ہیں، ان پڑھ ہیں، اتنا بڑا بیلٹ پیپر اور اس پر رنگ برنگے نشانات، اور اللہ پہ یقین کریں، اللہ پہ بعض نشاناتوں کے امیدوار نہیں تھے، انہوں نے نشان ڈال دیے۔ مانیں گے آپ یہ بات؟ یہ الیکشن کمشنر کے ایک افسر نے، الیکشن کمیشن کے ایک افسر نے انکشاف کیا، امیدوار ہی نہیں تھے، نشان ڈال دیے۔ اب کیتلی اور چینک، اس میں کیا فرق ہے بتائیں مجھے؟ کیتلی اور چینک ایک ہی بیلٹ پیپر پہ، یہ کچھ انہوں نے کیا، اور 10-10 کلومیٹر دور پھینک دیے ووٹ، ایک گھر کے 5 بندوں کے 5 پولنگ سٹیشن، یہ کچھ انہوں نے کیا۔ یہ سارا کچھ دہشت گردی کے خلاف نہیں کرتے، اتنا ہوم ورک دہشت گردوں کے خلاف نہیں کرتے، اتنا ہوم ورک کہ دہشت گردوں کے خلاف کریں۔ اور کوئی کہتا ہے 1500 ہے، کوئی کہتا ہے 500 ہیں، کوئی کہتا ہے ایس ایچ او کی مار ہیں۔ ہم نے ہوش سنبھالا تو یہی حال دیکھ رہے ہیں۔ لوگوں نے بہترین فیصلہ کیا، وہ بعد میں ثابت ہوتا کہ فیصلہ درست تھا یا غلط تھا، وہ بعد میں ثابت ہوتا، لیکن لوگوں نے 8 فروری کو فیصلہ کر دیا۔ سکندر سلطان راجہ میں اتنا دم ہے، قاضی فائد عیسیٰ میں اتنا دم ہے، وہ پاگل ہیں جو یہ سمجھتے ہیں۔ کمشنر چٹھا نے کیا کہا؟ 70 ہزار کی لیڈ سے بندے جیت رہے تھے اور ہم نے ہروائے۔ تو یہ سارا ذمہ دار کون ہے؟ جرنیل ذمہ دار ہیں، ندیم انجم ذمہ دار ہے، ڈی جی آئی ایس ہے، فیصل نصیر ذمہ دار ہے، ڈی جی سی، اور پھر سب سے اینڈ پہ آرمی چیف ذمہ دار ہے، جنرل عاصم منیر، جس کے کہنے پہ یہ سارا کچھ ہو رہا تھا۔ جو معاہدے ہو چکے تھے لندن میں، تم لوگ مجھے چیف بناؤ گے اور میں آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ لاسٹک کی شلواریں پہناؤں گا۔ کل بائی دی وے ملتان کا ایک پوپ ہے، بہت بڑا پیر ہے، تقریر کرتے ہوئے اس کی شلوار گر گئی ہے، یوسف رضا گیلانی کی۔
फिर एक तदबीर तुम करते हो और एक तदबीर ऊपर वाला करता है, वो फिर सेमिनार में शलवार गिरा देता है। ये बूमर्स हैं, ये जो है ना वो क्या है वो क्या कहते हैं उनको, वल्चर्स, अंग्रेजी में तो वल्चर्स कहते हैं, गिद्ध, ये गिद्ध हैं जिनसे शलवारें नहीं संभलती। इन सब के जिम्मेदार ये आप न समझे, इन पीरों को और इन गद्दी नशीनों को मामूली बंदा न समझे। इन सब के पीछे भाई लोग हैं, सबके पीछे कंपनी है, सबके पीछे। और हो सकता है इनके डब्बों में जो पैसे आते हैं उनमें से इनका हिस्सा हो, क्योंकि इतने पैसे आते हैं कि आप सोच नहीं सकते। मेरी कौम वो कब्र पे चादरों पे चादरें चढ़ाती है, लेकिन मेरी कौम किसी जो है ना वो सर्दी से ठिठुरते हुए बंदे को चादर नहीं देती। ये मेरी कौम का मिजाज है। बहरहाल इसको जर्नैलों को जो है वो ये समझते हैं, अवाम सारी की सारी जी समझते हैं। किसान, मजदूर, ताजिर, किसी ने नून लीग, पीपल्स पार्टी और MKM को वोट दिए ही नहीं है। लोगों ने अपने हाथों से वोट दिए, इनको नहीं दिए। वो कहते हैं हमने इनको नहीं दिए। मैंने आपको एक बुजुर्ग का वाकया सुनाया ना, मैं अपने बुजुर्ग को गांव में समझा रहा था। एक वहां पे PTI का निशान था, सोफा, और एक थी अलमारी। तो मैंने उन्हें कहा कि इतना बड़ा बैलेट पेपर होगा, ये इलेक्शन से पहले की बात है। फिर तो मैं पिंडी आ गया कि जी आपने ये जो है ना वो करना है। तो काफी मगजमारी के बाद वो मुझे एंड पे कहता है, पुत्र ए छोड़ गल्ला, मैं शेर ते मोर न मारसा, किताब ते मोर न मारसा, तीर ते मोर न मारसा, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पतंग तो है ही नहीं ना, वहां तो ये कैंसर और एड्स पहुंचे ही नहीं है मियाँ वाली में। मैंने कहा बस ठीक है बाबू जी, इन्हें ते तुसा नहीं मारनी मोर, बाकी तुम्हारी मर्जी है। ये हालत थी लोगों की। बहरहाल जी नहीं दिए, लिहाजा जिम्मेदार वही हैं जो इनको लाए हैं। ठीक है जी। अवाम की इदारों से शदीद नफरत की वजह इदारे खुद हैं, और ये इदारा 4 नस्लों का मुस्तकबिल खा गए हैं। आप जरा सोचें, अयूब खान ने कितने लायक बंदों को खुले लाइन लगाया होगा, कितने लायक बंदों को। सोरवर्दी कितना लायक आदमी था, याजा ने कितने लायक बंदों को खुले लाइन लगाया होगा। जर्नैल भी शामिल है उसमें, यानी जर्नैल भी बहुत वो काम के नहीं लगाए होंगे उसने। जिया ने कितने बंदों को खुले लाइन लगाया होगा इन शरीफों को लाने के लिए। मुशर्रफ ने, अच्छा मुशर्रफ दौर के सियासतदानों का नाम याद है? वो शेर अफजल, वो वसी जफर, वो वजीर सेहत नसीर मूछों वाला, वो किधर गए, किधर से आए थे और किधर गए? वो शौकत अजीज, वो किधर गए सारे? क्योंकि ये अपने साथ टीम लाते हैं और जो लायक लोग होते हैं उनका मुस्तकबिल तबाह कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते हैं कि आज 29 जनवरी है 2026, जुमेरात का दिन है, बड़ा प्यारा दिन है। व्यूअर्स कहते हैं कि सिर्फ जुमेरात को मरहूमीन के लिए दुआ करनी चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब मर्जी है करें, जरूर करें। जुमेरात का दिन वैसे हमारे बड़े बूढ़े कहते थे, सादा लोग थे, प्यारे लोग थे कि जुमेरात को वो दुरूद देते थे। तो आप भी मगफरत की दुआ कर लिया करें, कोई मसला नहीं है, कोई वक्त नहीं है, कोई दिन नहीं है। जब भी अल्लाह से आप हॉटलाइन पे राब्ता कायम करना चाहें, आप हॉटलाइन पे राब्ता कर लिया करें। वैसे भी शाबान का महीना चल रहा है, आज 9 शाबान है। जितने भी अच्छे अल्फाज हैं, सुबह बखैर के लिए, गुड मॉर्निंग के लिए और नमस्ते के लिए, व्हाट्सएवर, जो भी अच्छे अल्फाज हैं दुनिया में बोले जाते हैं वो सारे आपके लिए। ठीक है। और खासकर जो बैरून मुल्क, एक भाई ने शिकवा किया है हमारा जिक्र कम करते हैं, तो जी आप हमारे दिलों के बहुत करीब हैं, आप हमारे हीरो हैं। मुर्शद कहते हैं कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी मेरे दिलों के बहुत करीब है। जब मुर्शद ने कह दिया तो हमारी क्या औकात है, हम तो मुरीदों के भी मुरीद हैं मुर्शद के। तो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को खुसूसी सलाम, खुसूसी प्यार, अदब। मैं उनके घुटनों को हाथ लगाता हूं जो वो मजदूरी करते हैं, जो वो पाकिस्तान पैसे भेजते हैं। आपको सलाम है महमूद नियादी की तरफ से। 3 दरखास्तें आज। पहली दरखास्त है 8 फरवरी,
शटर डाउन, बंद मतलब बंद, पहिया जाम, बाइक मोटरसाइकिल पे नहीं सड़क पे नहीं लाना, गाड़ी सड़क पे नहीं लानी, अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारें, अपने बच्चों को प्यार करें, बीवी के कोई गिले शिकवे सुने, हमारी बहनों बेटियों माओ के साथ गुफ्तगू करें, और दूसरा ये है कि मेरी फरमाइश पे अपने बच्चों को गले लगाएं। वालिद जो होता है ना, वालिद वो कंजूस होता है, वालिद वो जो है ना बाद में बड़ा महसूस होता है कि वालिद को भी जफ्फी डालनी चाहिए थी बाद में। माँ तो माँ होती है ना, तो अपने बच्चों को गले लगाएं, उनके माथे चूमें, मेरी तरफ से भी उनका माथा चूमें, अल्लाह पाक उनके फ्यूचर जो है ना वो करे, रोशन करे। आपने 8 फरवरी को लाजमी अपना हिस्सा डालना है और हड़ताल करनी है। दूसरी रिक्वेस्ट क्या है? दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को आपने मजबूत करना है, इस पैकेज को। मैं आपका अपना बंदा हूं, मैं आप में से हूं, आम आदमी हूं, आम आदमी की आवाज हूं। चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाएं, इसके अलावा लाइक करें, इसके अलावा प्यारे दोस्तों के साथ, अपनों के साथ शेयर करें। और तीसरी आज एक नई दरखास्त है, वो ये कि आज इंशाअल्लाह ताला बड़ी खुशी से मैं अपने गांव जाऊंगा, दाऊद खैल जिला मियां वाली। तो वीडियो जो है ना उसमें जो रूटीन में थोड़ा अप्स एंड डाउन जा सकते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा नेट का मसला होता है। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा आपसे राब्ता रहे, गांव से 1-2 जगहों से आपको गांव भी दिखाऊंगा, तो कोशिश करूंगा कि वहां से राब्ता करूं। तो वीडियो हो सकता है टाइम लेट हो जाए, सुबह का शाम का, बहरहाल कोशिश 100% करूंगा कि आपके साथ राब्ता रहे। 29 जनवरी को क्या हुआ? 2 चीजें बड़ी अहम हुई 29 जनवरी को। रोमियो जूलियट आपने सुना होगा, ये विलियम शेक्सपियर का स्टेज प्ले था, ड्रामा था, और इसने जबरदस्त कामयाबी हासिल की 29 जनवरी, और ये 1595 को स्टेज हुआ, और इसने हर तरफ कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। आज की तारीख थी, 1595 था, और इस पे इतनी फिल्में बनी हैं, इतने ड्रामे बने हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। उसके बाद इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट 26 आ रहा है, 29 जनवरी को पहली गैसोलीन गाड़ी मार्केट में आई। गैसोलीन मीन गैस पे चलने वाली, ये था 29 जनवरी। और 1916 29 जनवरी जर्मनी ने फ्रांस पर हमला कर दिया, ये पहली जंग अजीम थी। 1916 जर्मनी ने फ्रांस पे हमला किया। अब आते हैं कुछ खबरों की जानिब और एक वीलॉग की जानिब। सबसे पहली खबर यह है कि सुहेल खान आफरीदी, उनके जो है ना वो वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं, ठीक है, पिंडी में, और आज उन्होंने इस्लामाबाद आना है। तो मेरी दरखास्त है हुकूमत से, जर्नैलों से, कि अल्लाह के वास्ते मेहरबानी करके सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार कर लें। यानी थोड़ा मजा आएगा, थोड़ा थ्रिल, जिस तरह एक्शन फिल्म होती है, तो थोड़ी जुर्रत पैदा करें। और सुहेल आफरीदी आएंगे, वो जाहिर है छुपेंगे तो नहीं, वो मुलाकात के लिए आएंगे, उनका पहला नाम है। तो आज आप सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके एक दफा ये शौक भी पूरा कर लें, क्योंकि पाकिस्तान बना है आपके शौक पूरे करने के लिए। आपके शौक यानी वो जो है ना, मेरी बेटी है ना, उसके बहुत सारे और अजीबो गरीब शौक हैं। आपको पता है एक बेटी है, वो रंग बिरंगे शौक पालती रहती है, तो वो मैं पूरे करने की कोशिश करता हूं। तो आप भी अपने शौक पूरे करें। 47 से लेकर 2026 तक आपने शौक पूरे किए हैं ना। मसलन पंजाब में एक काउंसलर नहीं बन सकती, ये काउंसलर का इलेक्शन ये हिंदा लड़े, उम्मे जमील ये नहीं जीत सकती, आपने वजीर आला बना दिया। शौक शौक ना मुल्को नहीं। जो कल क्या कहती है पता है? हम दिमाग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दिमाग, आला दिमाग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हाय जर्नैलो, डॉक्टर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंजीनियर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अकाउंटेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उनका दिल है पाकिस्तान में सिर्फ पटवारी रह जाएं, सिर्फ पटवारी रह जाएं, इंसान कोई ना बचे। हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अंदाजा करें, पंजाब में 2 लाख मरीजों के लिए एक डॉक्टर है, 2 लाख मरीजों के लिए, ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसने खुद MBA में MA किया है, इसने हिस्ट्री में फिक्शन किया है। आज तक नहीं पता चल सका कि ये सदरनी बुड्ढी पढ़ी हुई कितना है, ये इसने क्या पढ़ा हुआ है। वो कह रही है हम दिमाग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपके शौक हैं जी, शौक पूरा करें। खेलन को मांगे चांद,
अनोखे लाडले, नवाज शरीफ लाडला, एयरपोर्ट पे बायोमेट्रिक कराएं, ये लाडली वजीर आजम बनाए, जरदारी लाडला, पूरी फैमिली जिस तरह बादशाह होता है ना, बादशाह के साथ मुलाकात कर रही है जरदारी, बिलावल, बख्तावर, आसफा, बख्तावर का घर वाला इमरान खान के ट्वीट इनको नजर आते हैं, वो यानी सरकारी उसमें बैठा है, वो औराई है कोई, उसका घर वाला बैठा है जो वैसे भी बच्चे पैदा करने की मशीन है, पत्नी हर 9 महीने बाद ही बच्चा नया फोटो पैदा करता है। तो वो जो है ना, वो बैठे हैं मोहम्मद बिन जायद के साथ। शौक ना मुल्को नहीं, शौक ना। वो मैं गांव में गया, आज फिर जाना है, तो एक कुक्कड़ फिर रहा था जबरदस्त। मैं बहन के घर गया तो मैंने भांजे को कहा, यार आज ये कुक्कड़ न खाएं। तो वो कहता है, बिल्कुल जी खाएं मामू जी, इसके करवाते हैं, खाएं। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि कल इसकी 55,000 कीमत लगी है, 55,000। मैंने कहा वास्तव यार मैं नहीं खाता, तुम्हारा 55,000 जो है ना मैं 1 घंटे में खा जाऊं, मैं वह खाता भी 1 रोटी हूं। मैंने कहा नहीं। उसने बड़ा कहा, मैंने कहा ना, 55,000 का चेक है यार तुम्हारा। जिस तरह वहां हमारे यहां ये शौक है, बुटेरे के शौक है, इनके शौक है ये हुकूमत गिरा दे हुकूमत गिरा दो। मुल्क को क्या है, ज्यादा से टूट जाएगा। शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर ले, मुल्क टूट जाएगा। क्या होगा, ज्यादा क्या होगा, मुल्क टूट जाएगा। हुकूमत गिरा दें, हुकूमत बना दें, इलेक्शन में धांधली कर दें, इमरान को उठा लें। शौक है, अपने शौक इन्होंने शौक पूरे करने पाए। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि मिड टर्म इलेक्शन हम हार जाएंगे। डेमोक्रेट्स बड़े गंदे लोग हैं, इनके खिलाफ जो वोट डाले वही जहनीत जर्नैलों वाली कि जी डेमोक्रेट्स बड़े गंदे लोग हैं। इसको पड़ी हुई है मुआवजे की कि अगर मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में है, अगर मैं हारा ना मुझे घसीट के बाहर निकालेंगे। अब कहा जा रहा है कि अगर ये इसका मुआवजा होता है ना इम्पीचमेंट, ये अमेरिका में भी नहीं रह सकेगा, ये लानती खोसट, इसको इजराइल जाना पड़ेगा। क्योंकि ये से कहते हैं कि ये पहला यहूदी सदर है। उसके बाद बसंत जलील करवा रही है, पूरे मुल्क में जलील करवा रही है। हालांकि मेरा दिल था कि मैं पतंग उड़ाऊंगा, सारी जिंदगी नहीं उड़ाई, लेकिन इस दफा उड़ाऊंगा और उस पर नवाज शरीफ की तस्वीर लगाऊंगा। इन्होंने मना कर दिया है। यानी एक गुड्डी पे कैप्टन सफदर की तस्वीर मैंने की थी कि वो लगाऊंगा, एक पे नवाज शरीफ की लगाऊंगा, एक पे मुख्यमंत्री की लगाऊंगा, फुल मेकअप वाली। अब इन्होंने खुद मना कर दिया है। हाय खान, नी रीसा खान आजम, खान जी तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? नी रीसा, कोई नहीं जमया खान जी, कोई नहीं जमया आप जैसा। और आखिरी खबर यह है कि स्टॉलमर, ये बरतानिया के जो है वो वजीर आजम है, ये पहुंचे हैं जी चाइना पहुंच गए हैं। ये गुज़िश्ता 8 साल में किसी बरतानवी वजीर आजम का पहला सरकारी दौरा है। अब आप डॉट कनेक्टिंग कर लें कि ट्रंप को शशगेरा क्यों लगा हुआ है, ट्रंप को जर्दी माइल और सब्जी माइल पेचश क्यों लगे हुए हैं। उसने कल मेरे ख्याल है वकार मलिक ने कहा कि उसने सब कुछ दांव पे लगा दिया है, सब कुछ। अगर वो जीत गया ना तो जीत गया, फिर पूरी दुनिया पे उनका सिक्का चलेगा। और अगर वो हार गया, वो अमेरिका से भी हाथ धो बैठेगा। पूरी यूरोप जो है ना वो इंडिया के पास चली गया है, पूरा यूरोप चाइना के पास चला गया है। यानी ये गोरे समझते हैं कि जो भी चीन जाता है ना, जो भी चीन जाता है उसको पकड़ के उसका सर उड़ा देते हैं। ये इन्होंने ये समझा हुआ है। मीडिया का झूठ, जिस तरह इमरान के दौर में मीडिया ने झूठ फैलाया, ये कहते हैं कि जो भी जाता है पहले उसे शी जिनपिंग हाथ मिलाता है, फिर उसको बालों से पकड़ के उसका गला काट देता है। ये सारे गोरे यही समझते हैं। उन्होंने कहा यार ये तो नहीं है। अब पिछले दिनों कॉर्नी गए हैं वो कनाडा के वजीर आजम, बड़ा जबरदस्त। उन्होंने कहा यार आम लोग हैं, अच्छे लोग हैं, मेजबान हैं। अब स्टॉर्मर पहुंच गए। स्टॉर्मर ने पूछा होगा कॉर्नी से कि कैसा था माहौल, उसने बताया होगा जबरदस्त माहौल था, 5 स्टार होटल्स थे, सारा कुछ। अब वो भी पहुंच गया, स्टॉर्मर भी पहुंच गया। अमेरिका हैरान है, अमेरिका
बहरहाल जी, अगली सुर्खी पे चलते हैं। दुनिया के अमन के लिए खतरा, ये कहता है फॉक्स न्यूज ने रिपोर्ट दी है। और जब इस किस्म के सर्वे आना शुरू हो जाए ना, तो फिर आप डॉट कनेक्टिंग कर लिया करें कि ये अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट अब क्या चाहती है। क्यों, मैं क्यों कह रहा हूं? दुनिया के अमन को खतरा है, पहले नंबर पे डोनाल्ड जे ट्रंप 41%। अपना एस्टेब्लिशमेंट का अपना चैनल है, जियो न्यूज है उनकी एस्टेब्लिशमेंट का। पहले नंबर पे डोनाल्ड ट्रंप, दुनिया के अमन को खतरा 41% डोनाल्ड ट्रंप से। नंबर 2 सारा संगी किम जोन हुन, शुमाली कोरिया वाला मेरा संगी, वैसे 17%। किम जोन हुन से 17% खतरा है दुनिया के अमन को। सैयद अली खामेनाई, ईरानी है, आप जानते हैं, सुप्रीम लीडर, माय फेवरेट, 8% इनसे खतरा है दुनिया के अमन को। व्लादिमीर पुतिन, ये भी अपना संगी है, दबंग आदमी है, 8% व्लादिमीर पुतिन से दुनिया के अमन को खतरा है। नंबर 5 है जी शी जिनपिंग, चाइनीज प्रेसिडेंट है, 7% इनसे दुनिया को खतरा है। यानी किम जोन हुन, सैयद अली खामेनाई, पुतिन और शी को मिलाएं भी ना तो फिर भी ट्रंप ज्यादा है खतरा। एक और बात नोट करें, हमें दहशतगर्द कहते हैं, हमें मुसलमान दुनिया में, ये इसमें से कितने मुसलमान हैं? ट्रंप, किम जोन हुन, सैयद अली खामेनाई, व्लादिमीर पुतिन, शी पिंग, कितने मुसलमान हैं इनमें से? एक, सैयद अली खामेनाई, और वो है 8%। 8% क्या ईरान ने आज तक क्या किया? किस पे हमला किया ईरान ने? हाँ, ईरान की प्रॉक्सीज हैं, सीधी बात है, ईरान की प्रॉक्सीज हैं। ईरान ऑपरेट करता है, हूतीज हो गए यमन में, हिजबुल्ला हो गई लेबनान में, शाम में, इस तरह। तो ईरान की ये तो मामलात हैं, कोई माने न माने, नाराज हो, जो मर्जी हो, ईरान के ये हैं। लेकिन ईरान दुनिया पे बराह रास्त हमला करना या ये ईरान में नहीं है। तो ये दुनिया के अमन, ये फॉक्स न्यूज कह रहा है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप के दिन गिनना जो है वो शुरू कर दें। इलामा राजा नासिर अब्बास बहुत कमिटेड आदमी है, जबरदस्त आदमी है, इमरान के बिल्कुल दाएं हाथ हैं। इमरान और इलामा राजा नासिर अब्बास में बड़ा प्यार है, बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। कल इलामा राजा नासिर अब्बास से पूछा गया कि आप इमरान से मिलना चाहेंगे, तो इलामा साहब ने कहा कि एक दफा इजाजत लेकर देखें और फिर देखें मैं इमरान से किस तरह मिलने जाता हूं, किस हाल में मिलने जाता हूं। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा वो इमरान खान से मिलना चाहता है, ये इलामा साहब ने कहा। लेकिन कल हरमीत सिंह के साथ उनका इंटरव्यू था, हमारे बड़े प्यारे सहाफी हैं, बड़े खूबसूरत हैं हरमीत सिंह, आपने देखे होंगे। उन्होंने इंटरव्यू किया इलामा राजा नासिर अब्बास का। इलामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं कि गजा में अगर फौज जाती है और खुदा न खास्ता हमारा फौजी कोई जान से जाता है, तो शहादत निश्ता ना, शहादत वाले कुरकुरे, चूरन, खट्टा मीठा वो नहीं बिकेगा। बल्कि एक आलिम का वायरल है इस पे सोशल मीडिया पे बयान कि जी जनाजा भी हम नहीं पढ़ेंगे, हाँ अगर वो हमास के हाथों जान से जाता है। वो पैगंबरों की सरजमीन है, वो किबला अव्वल है, वो दुनिया की वाहिद जमीन है जिस पर 1,24,000 अंबिया ने नमाज अदा की। वो वाहिद जमीन है, वाहिद, वो वाहिद जमीन है। जब आपने ऐलान किया ना कि मैं रात को मेराज, शब मेराज बैतुल मुकद्दस गया, पैगंबर आए, दुआ सलाम हुई, आसमानों पे गया, स्वयं 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 स्वयं, मक्का में तहलका मच गया। उन्होंने कहा देखें जी अब हमारे पास फुल टॉस आई है, फुल टॉस, एक बंदा एक रात में ये कर रहा है, फुल टॉस दे दी है रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब हम इससे खेलेंगे। अच्छा, उन्होंने सवालात की बुछाड़ कर दी। बैतुल मुकद्दस के दरवाजे कितने, खिड़कियां कितनी, रोशनदान कितने। अब आप बताएं, आप मस्जिद में रोजाना जाते होंगे, किसी न किसी मस्जिद में, इमाम बारगाह में, आपको पता है कितने दरवाजे हैं, खिड़कियां कितनी हैं? आप खिड़कियां गिनने जाते हैं?
دروازے گرنے جاتے ہیں، اب تو نماز پڑھنے جاتے ہیں، نماز پڑھ کے چلو جی، وہاں انہوں نے پورا بیت المقدس اٹھا کے رب الکریم نے سامنے رکھ دیا کہ بتا اے میرے محبوب، بتا کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکی، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے۔ ایک سرنگ ہے، سرنگ فلسطین میں ایک سرنگ ہے جس میں 18 انبیاء دفن ہے، 18 انبیاء۔ یہ دنیا میں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے، ایک سرنگ ہے اس میں، یہ وہ سرزمین ہے۔ تو علامہ راجہ ناصر باز کہتے ہیں کہ شہادت وہادت والا نا چورن، کرکرے، سلانٹیاں یہ نہیں بکیں گی، آپ جا کے دیکھیں، آپ ایک دفعہ جا کے دیکھیں، کیونکہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ بنجمن نیتن یاہو سامنے ہے اور اس کے پیچھے کون ہے؟ ڈونلڈ جے ٹرمپ اس کے پیچھے ہے، اس کے پیچھے مارکو روبیو نسلاً یہودی، اس کے پیچھے سٹیو وڈکوف نسلاً یہودی، ان کے پیچھے یہ ہیں۔ تو بہرحال یہ ناصر عباس نے کلیئر کر دیا ہے۔ آخری خبر، پمز کا 3rd فلور بن رہا ہے، 3rd فلور۔ آپ میں سے کئی لوگوں نے پمز دیکھا ہوگا، کمپلیکس بھی کہتے ہیں، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اسلام آباد میں بہت بڑا ہے۔ تو اس کا 3را فلور نامکمل ہے، 3را فلور نامکمل ہے۔ 3رے فلور پر خان صاحب کو لے جایا گیا، 3رے فلور پہ، اور نیچے سے مشینری اوپر، اب دیکھیں آپریشن تھیٹر کی مشینری کیسی کیسی مشینری ہوتی ہے، اوپر شفٹ کی گئی۔ یار یہ کسی تگڑے دشمن کے سامنے آ گئے۔ جتنے بھی پیمز کی سیکیورٹی تھی نا وہ رات کو 8 بجے سے پہلے چینج کر دی گئی، نامعلوم آ گئے۔ ڈاکٹر عارف کو 8 بجے ہسپتال میں پہنچا دیا گیا، رات کو 12 بجے کاروائی شروع ہوئی۔ یار کتنا تگڑا ہے وہ بندہ، ٹنڈی ٹینشن، ہڈے تارے، ہڈے چوانیاں، ہڈے ٹھانیاں، اس کو تو کچھ بھی نہیں ہے، ملنگ آدمی ہے، شلوار قمیض ہوتی ہے، زیادہ زیادہ ویسٹ کوٹ ہوتی ہے۔ لیکن آپ ان کی پستیاں چیک کریں، یعنی ہم کہتے ہیں یہاں سے نیچے نہیں گریں گے یا اوسو ہی تلے گرنے، یعنی ایک مریض آپریشن تھیٹر میں ایک ڈلیوری ہوتی ہے نا بچے کی، تو باہر کتنے لوگ موجود ہوتے ہیں، کتنے کاغذوں پہ سائن کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ یہ معاملہ ہو گیا، خدا نخواستہ نشہ دینا پڑتا ہے، خدا نخواستہ خون لگانا پڑتا ہے، سارے سائن۔ وہ بالکل لاوارث 3 کروڑ ووٹ لے کر، اتنا بڑا قبیلہ شیرمان خیل میاں والی میں، ادھر ہنستی بستی 3 بہنیں، بھانجے، بھتیجے سوری ایک ہی ہے، کزنز، اتنا خوف، اتنا ڈر۔ 3rd فلور جو بھی زیر تعمیر ہے، زیر تعمیر ہے۔ اچھا کوئی بھی جرات نہیں کر رہا ٹی وی پہ رانا سنولا بس مچھن دیکھوس کمالو، مصطفیٰ کمالو وزیر صحت ہے، پتہ نہیں سی کہنا ہے، پتہ نہیں، پیووں کو پتہ ہو دی، پیو کو پوچھو، رانا سنولا خواجہ سے یہ جو ہے وہ جو ہے، یہ جو ہے وہ جو ہے، ریحانہ ڈار جو ہے وہ جو ہے، اتنی جرت نہیں ہے۔ لاکھ لعنت ہے تمہاری وزارتوں پہ، لاکھ لعنت ہے تمہارے عہدوں پہ، اتنا ڈرتے ہو تم لوگ، تصدیق نہیں کر رہے، کبھی ادھر سے گزر جاتے ہیں، کبھی ادھر سے گزر جاتے ہیں، اصل گال نہیں دسنے۔ آپ روب چیک کریں، کیونکہ یہ اللہ ڈالتا ہے، اللہ دلوں میں ڈال دیتا ہے، اللہ۔ کل آپ کو بتایا تھا نا کہ مومن کی فراست سے بچو، مومن کی فراست سے۔ یہ کیا بیچ، میں کہتا ہوں قسم خدا کی اس کو چیف بنا دے، اس کو آرمی چیف بنا دیں 73 سال کی عمر میں، دنیا ویسے ہی تھر تھر کانپے گی، تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، ٹرمپ شرمپ جیسے۔ یاد ہے ٹرمپ نے ٹویٹ کیا تھا، نکال لیں ٹرمپ کی لائن پہ اور عمران کی لائن پہ، نکال لیں، ہم نے جی اربوں ڈالر دیے، ہم نے یہ کیا پہلی مدت میں۔ اگلے دن وہ جواب دیا عمران خان نے ٹویٹر پہ کہ ٹرمپ بالکل جھاگ کی طرح بیٹھ گیا کہ تم نے ڈالر دیے، کس منہ سے کہہ رہے ہو، کتنے بندے ہمارے شہید ہوئے، کتنا ہمارا نقصان ہوا،
डोनाल्ड ट्रंप दुबक गया। मैं कहता हूं उसी को चीफ बना दे, फील्ड मार्शल बना दे, उसी खान को कोई मैली आंख से नहीं देखेगा। और हम रिटेलिएट करने का सोचेंगे नहीं, हम रिटेलिएट करेंगे। इन्होंने तो पता नहीं इंडिया में क्या किया, हमने तो नहीं देखा, न गिरे हुए यहां उसके दौर में हमने अभिनंदन देखा, मुच्छें देखी, MiG-21 देखा, लोगों के लाफे देखे, लपाड़े देखे, बागा बॉर्डर पे उसको हैंड ओवर करते उसके दौर में हमने देखा। उसी को चीफ बना दे। जितना तुम लोगों को डर लगता है और तुम लोग कन्या कतराते हो तो उसी को चीफ बना दो। ना होगा बांस, न बजेगी बांसुरी। ऐसा वर्दी सूट करेगी, इस जैसा आर्मी चीफ जहात वाला वो हिस्ट्री में नहीं होगा। इतनी पस्ती, इतनी जलालत, इतना जुल्म, इतनी कमीनगी। अब असदुल्ला खान कह रहा है कि कोई गंदे औजार लगा दिया गया हो। इन पे क्या एतबार है, क्या एतबार? मैंने आपको कहा ये कहना 5 नमाज़ां तो साहब को नहीं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ है ये। 5 नमाज़ां वाला चक्कर है कोई। ये कहें कि रोदे फाड़ दें तो आंख नहीं, ये कोई चक्कर है जर्नैल, ये चक्कर है, कोई माल है, रोदे कोई माल है। ज़कात फरोदी तो आंखों नहीं, ये खुद खाऊ ज़कात। इन्होंने ये पोजीशन है। कोई गंदा औजार लगा दिया गया हो जो 5 साल बाद जाहिर हो, कोई हेपेटाइटिस सी वाला, कोई क्या पता इनका, क्या पता। लेकिन कल भी मैंने मशवरा दिया था कि कफन बुलेट प्रूफ रखने हैं, क्योंकि मुनकर नकीरा तुम्हारे को पूछना नहीं, हिसाब किताब नहीं गिरना, उन्ना वजनी ला तो आपको आंकड़ा है, उतारो कपड़े। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।